Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Now is the time to think about, to strategize about your studies for the next 3 months. So in this particular discussion, we are going to talk about a study plan for the 3 months period, that is August, September, October. आई एम टेकिंग द 10 days टाइम, अराउंड 20 जुलाई के आसपास ये वीडियो अपलोड हो जाएगी. सो पोस्ट दैट 10 days आई एम टेकिंग एन एवरेज टाइम सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन व्यू द वीडियो एंड प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज हिज और हर स्टडीज, राइट? Before coming to the discussion, one or two important points to note that on a daily basis, conceptual MCQs are being tested on our channel S Valimbe classes for CA Final Law Telegram channel. You can join that and you can take the benefit of the free resources. Link is available in the description. Apart from that, all the books, classes, everything, each and every registration is being done only on the website. You don't need to message anywhere. In case of any query, you can obviously contact us, but otherwise registrations are directly be done on www.svalimbeclasses.com. Again, the link is available in the description, right? Now, let's start with our study plan discussion, and we are going to discuss both the things, both the issues. One is your both group study plan, so those students who are giving both groups, and the other will be the single groups cases. But the method of discussing the study plan will differ because comparatively in both groups we have to handle 8 subjects. 8 सब्जेक्ट्स को हैंडल करना कंपेयर टू 4 सब्जेक्ट्स बिकम्स अ बिट टफ. हेंस थोड़ा सा 2 ग्रुप्स में हम बहुत डिटेलिंग में जाते हैं. डेज भी मैं ट्राई करता हूं कि एलोकेट करके दूं, एंड कंपैरेटिवली सिंगल ग्रुप वाले केसेस में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं तो डेज की प्रॉब्लम नहीं आती कि मैं कौन सी चीज कब करूं. जनरल गाइडलाइंस देने की जरूरत पड़ जाती है. हेंस मेथड ऑफ डिस्कसिंग इज डिफरेंट बट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द केसेस, राइट? तो नीचे आप यू कैन जस्ट ट्राई टू सी द डिस्क्रिप्शन वंस कि आपका सिंगल ग्रुप कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन से मिनट पे, डायरेक्टली यू कैन व्यू दैट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट केस, बोथ ग्रुप्स. तो 3 मंथ्स का स्टडी प्लान है. नवंबर 22 अटेम्प्ट, ऑब्वियसली योर डेट शीट इज आउट, उसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं हमारे पास, इन विच वी आर गोइंग टू ट्राई टू कवर 8 सब्जेक्ट्स वेरी 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 प्रॉपरली, राइट? So subjects are FR, SFM, Audit Law, that is your group 1, SCMP, Elective, IDT and DT and IDT, that is your group 2. So before we jump into the detailed planning, we will talk about 5 to 6 important points you need to take care of. First, there is obviously, इसको थोड़ा zoom in कर लेते हैं. There is obviously an inherent assumption, that is basic study and classes are done from your side. Because see, मैं ये नहीं कह रहा 100% सारी हो चुकी होंगी चीजें, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक अजम्पशंस कि आपकी अब ये क्लास पेंडिंग है, किसी बच्चे की वो क्लास पेंडिंग है. सो ऑन अ जनरल बेसिस आई एम टेकिंग एन अजम्पशन दैट ओके, मेजरली द क्लासेस आर डन एंड मेजरली योर स्टडी, एक कहते हैं ना वन टाइम स्टडी अलोंग विद द क्लासेस इज डन. बिकॉज इन लास्ट 2 to 3 months जनरली ऐसा नहीं होता कि मेरी 2-3 क्लासेस रहती है, मेरी ये सेल्फ पढ़ाई रहती है और मैं इतना सारा कवर करके फिर मैं रिवाइज करूंगा. नो, जनरली लास्ट 2 to 3 months on an average, a student who is giving both groups will devote the time for revision, right? तो इसमें हमारा फोकस वो रहने वाला है. बट डोंट बी स्केयर्ड कि सर मेरा तो 1-2 क्लासेस रहती है, चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. प्लान एक जनरल गाइडलाइन है, उसको अमेंड करना ही पड़ेगा. ओके, इफ यू हैव अ प्लान, if you have your own plan, I would advise you to stick to it, but view this video because it is possible that there is even one single point that you may have skipped in your preparation, because these points and these study plans are coming from my own experience plus the experience of last 3 years of teaching. So it might help you 1 or 2 points that you may have skipped and they may help you in your preparation, right? So stick to your plan but view the video so that you are able to gather some important points that may have been skipped. Third, हैंडलिंग 8 पेपर्स विल ऑब्वियसली बी मोर कॉम्प्लेक्स देन 4. जनरली स्टूडेंट का क्या होता है, ये मेजरली उनके केसेस में आता है जिन्होंने who have given maybe a single group in IPCC and they are attempting both groups in final, just like me. So I used to feel यार ऐसा कोई मोमेंट नहीं आ रहा जिसके अंदर ना we feel that all 8 subjects are in our control. ऐसा कभी भी नहीं आएगा, तो वो चीज ढूंढने की कोशिश मत करो which you cannot find, right? So वो फीलिंग कभी भी नहीं आएगा when you are feeling 100% comfortable, you feel 100% of course is done, all 8 subjects are be done, I'm able to remember each and every one of that particular point. Rather than both group, सिंगल ग्रुप में भी आजकल ये नहीं आता, इतना सारा सिलेबस है. सो डोंट वरी. लेकिन पेपर में ये ध्यान रखना, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि चलो इस सब्जेक्ट का सारा इससे पूछते हैं. नो, देयर विल बी मिक्स एंड मैच चॉइसेस मिलेंगे और सबकॉन्शियस माइंड उतना काम कर जाएगा पेपर में कि आप पासिंग या मोर देन पासिंग, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, आप पेपर को हैंडल कर पा रहे हो.
सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट ट्राई टू गेट दैट फील कि यार मेरा सारा अच्छे से हो गया, मेरे को कभी भी पैनिक नहीं आ रहा है, थोड़ा पैनिक होएगा, 8 सब्जेक्ट्स है, तो पहले से माइंड को कंडीशन करके रखो। ओके, नेक्स्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस, दिस प्लान इज नीड्स टू बी अमेंडेड। इसको कट शॉर्ट करके मतलब कैसे कैसे लेके जाना है अगले 2-2.5 महीनों में, वो आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये जनरल गाइडलाइंस है, सो प्लीज डोंट ट्राई टू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर प्लान इन लेटर, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वे ऑफ स्टडिंग, मेथड ऑफ स्टडिंग, करंट स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन विल डिफर, दैट आई कैन नॉट अज्यूम, तो उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। बेसिक एक्टिविटीज जैसे कई होते हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू नो कितना आप उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो। जैसे फोन बंद करना है मुझे, मैं बाहर जाना बंद करूंगा, मैं दोस्तों से नहीं मिलूंगा, मैं वो स्टेटस हटा दूंगा व्हाट्सएप पे कि नहीं भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ, नहीं, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू क्रिएट एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑलरेडी इनहेरेंट प्रेशर इज क्वाइट टू मच। तो व्हाट माय एडवाइस वुड बी कि सारी एक्टिविटीज मिनिमल उसमें रखो। हफ्ते में 3 दिन आपको बाहर जाना है, जाओ, खेलने जाते हो खेलने जाओ, फिजिकल एक्टिविटीज बल्कि कंटिन्यूड रखना, कम उसमें, मतलब ऐसे नहीं कि मैं कह रहा 2-2 घंटे जाओ, बट कोई जिम जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बेसिक एक्टिविटीज प्लीज ट्राई टू कंटिन्यू, बिकॉज इट विल हेल्प यू नेविगेट द स्ट्रेस, इट विल हेल्प यू नेविगेट दिस 3 months प्रिपरेशन टाइम, राइट। सो दैट इज माय पर्सनल एडवाइस कि बेसिक एक्टिविटीज कंटिन्यूड रहे, बट लिमिटेड मैनर में, ये नहीं 2-2 3-3 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो। ओके, अच्छा, एक चीज, मार्किंग्स अप्रोच एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है दैट यू नीड टू फॉलो। ये अक्सर सब सुनते हैं, सब everyone knows it, but hardly I have seen many people, hardly I have seen very few people that they are implementing it, right। अब मार्किंग्स अप्रोच के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ, वॉट एवर स्टडी यू आर डूइंग एंड अभी तक नहीं किया तो प्लीज डोंट वरी, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन दिस पर्टिकुलर स्टडी टाइम जो आपके 2-2.5 महीने आप करने वाले हो, एंड लास्ट का रिविजन। अभी जब आप पढ़ोगे ना, आपकी मार्किंग्स रेडी हो जानी चाहिए। व्हाट इज मार्किंग्स, कि एंड में क्या करना है, as simple as that। it is not possible to revise each and everything again and again। अगर मैं पीजीबीपी उठाता हूं तो पीजीबीपी में जैसे अगर 40 सेक्शन है, 40 सेक्शंस में से मेरे को पता होना चाहिए कि यार ये 6 से 8 सेक्शन में मुझे दिक्कत होती है, उन सेक्शंस में भी क्या पार्ट मुझे दिक्कत होती है। 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन आप दोबारा नहीं कर सकते, उसमें से 8-10% भी, मतलब एक 10-15% क्वेश्चन आपके टिक मार्क हो जाने चाहिए कि यार ये मेरे लिए मुश्किल लगे थे मुझे, एंड व्हाट वाज द एग्जैक्ट पॉइंट इन दैट क्वेश्चन which proved to be a difficulty for me। पूरा क्वेश्चन मार्क करके नहीं छोड़ना है। जितनी डिटेलिंग में मार्किंग करोगे ना, उतना फायदा मिलेगा इन नेक्स्ट रिवीजन। आपने एक फनेल देखा है, ऐसे जाता है फनेल, याद है आप साइंस में पढ़ते थे, ऐसे ऐसे आपका सिलेबस जाना चाहिए। स्टार्ट में इतना पढ़ोगे, बाद में इतना पढ़ोगे, एक दिन पहले इतना पढ़ोगे। ये एक दिन में इतना सा पढ़ने के लिए ये पढ़ाई अच्छी होनी जरूरी है, इसमें से मार्किंग्स निकलना जरूरी है, दैट विल हेल्प यू, राइट। तो मार्किंग्स अप्रोच फॉलो करना मत भूलना, अभी तक नहीं करिए कोई बात नहीं, अब करो, पर मार्किंग्स रेडी होनी चाहिए पर्सनलाइज्ड मैनर में। ये नहीं हाँ भाई सुन क्या क्या मार्किंग कर रखी है यार, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे दे दे, ना। उसके लिए जो मुश्किल है आपके लिए आसान हो सकता है, आपके लिए जो मुश्किल है उसके लिए आसान हो, राइट। सो मार्किंग्स अप्रोच। अच्छा, लास्ट पॉइंट बिफोर वी जंप इनटू द डिस्कशन, जीरो फोकस, एब्सोल्युटली नील फोकस ऑन हाउ मेनी आवर्स am I studying in a day? I am studying 14 hours, I am studying 16 hours, I am studying only 8 hours, I am studying only 4 hours. This is completely irrelevant and immaterial. Please understand, if you are doing quality study of 8 hours, it is much more important and much more relevant than someone who is just sitting there for 16 hours and saying यार मेरी तो नींद नहीं पूरी हुई, मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पेपर में जितना आपको क्लियर करना है वो क्वालिटी के बेसिस में निकलने वाला है, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी यू आर डूइंग। तो प्लीज डोंट, मैंने आपको नीचे एक एक के घंटे दिए हुए हैं कि जैसे 3 घंटे करना है, ये करना है, बट टोटलिटी पे कहीं पे भी नहीं दिया कि कितने देर दिन में पढ़ाई करनी है, हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू डिवोट। तो माय एडवाइस फॉर माई सेल्फ ऑल्सो वॉज दिस कि भाई मुझे कभी ये नहीं फोकस करना मैं दिन में कितने घंटे काम करता हूँ या मैं कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ। आज भी पढ़ता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई चल ही रही होती है, पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, पर ये कभी फोकस नहीं दिया मैंने दिन में कितने घंटे, ठीक है। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कभी कभार निगेटिव भी इंपैक्ट आ सकता है, अननेसेसरी आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। तो इस पर कोई फोकस मत बनाओ यार, दिन में ठीक है यार, जितना अच्छा लगेगा उतना पढ़ेंगे, जितनी जरूरत है उतना पढ़ेंगे, फिर चाहे 4 घंटे हो या फिर 14 घंटे हो, क्यों सोचना। क्लियर। सो दीज वर सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस। बोथ ग्रुप्स के केस में मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं बिकॉज 8 सब्जेक्ट्स को हैंडल करने में दिक्कत आती है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन। आपको कैसे कैसे व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। नाउ आई एम स्टार्टिंग द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम 1st August। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, this study plan discussion in the period of 20th August
20th July till 1st August, then you can start a bit early. It will help you in your preparation. क्लियर है? सो 1st August से 20th August 20 डेज में आपको 3 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, FR, SFM एंड लॉ. माय ब्रॉड बेस्ड गाइडलाइन इज दैट फर्स्ट फोकस ऑन ग्रुप 1 एंड देन वी विल मूव टू ग्रुप 2. कंपैरेटिवली ग्रुप 2 बाद में देना है, तो जितना लेटेस्ट प्रिपेयर करोगे उतना फायदा मिलेगा. हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस दिस इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड और हमेशा ये चीज सक्सेसफुल रही है. ओके, डेली सुबह FR 3 घंटे, दोपहर में लॉ 3 घंटे, SFM शाम में 3 घंटे. तो ये आपको डेली बेसिस पे 20 दिन करना है एंड यू हैव टू ट्राई टू फिनिश ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स. ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको खत्म करने हैं. हो सकता है इसमें से लॉ की आपकी क्लासेस पेंडिंग हो, लेके खत्म करो. इस टाइम ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर फास्ट ट्रैक क्लासेस ओनली, मतलब जो कंपैरेटिवली 70-80 आवर्स तक है. तो हो सकता है आपको इसमें भी लॉ खत्म करनी पड़ जाए, तो आपको इसी में वो आपको क्लासेस भी कवर करनी है. क्लियर? सो FR, लॉ, SFM आपको डेली 3-3 घंटे करनी है. 20 दिन है, खत्म करने हैं तीनों सब्जेक्ट. राइट? 1 hour कीप इन टच स्ट्रेटेजी. सर ये क्या है लाल में, पता नहीं व्हाट इज दिस कीप इन टच स्ट्रेटेजी? आई हैवंट हर्ड अबाउट इट एनी टाइम अर्लियर. ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्ट्रेटेजी मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं, हर एक स्टडी प्लान में स्ट्रेस करता हूं, और खुद भी फॉलो करिए एंड हमेशा सक्सेसफुल रहिए. प्लीज हियर मी आउट इन 2 minutes ब्रीफली. ये स्ट्रेटेजी है क्या? सपोज मेरे पास 8 सब्जेक्ट थे. ठीक है, सपोज क्या, मेरे पास तो थे ही 8 सब्जेक्ट में से सपोज मैं 3 दिन करता हूं, 3 सब्जेक्ट उठा रहा हूं एक दिन में. मुझे लगता था कि यार बाकी 1-2, जैसे मुझे DT में बहुत डर लगता था अपने स्टडी के टाइम, एंड आई यूज्ड टू फियर दैट इफ आई डोंट कीप सीइंग सम पार्ट ऑफ DT ऑन अ डेली बेसिस, देयर वाज अ साइकोलॉजिकल फियर दैट आई विल फॉरगेट DT ड्यूरिंग माय लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन. So what I used to do every day for half an hour, I used to pick 2 or 3 chapters of DT and I used to just go over some important points of that particular chapter so that it used to give me a psychological edge. यार DT तो मेरे को बहुत अच्छे से आती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भूला नहीं. So this is something that I stress upon in every study plan. You have to maintain a keep in touch strategy in which you are going to read, not learn, not revise, don't try to recite, don't try to test yourself. अपने आप को टेस्ट मत करना इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, बस रीड करना है. क्या जो आप ऊपर सब्जेक्ट्स नहीं कर रहे उनको छोड़ के कोई सब्जेक्ट्स है उसको आपको कीप इन टच रखना है टू हैव दैट साइकोलॉजिकल एज. सुनने में लगेगा सर ये क्या साइकोलॉजिकल बोल रहे हो, बट इट इज गोइंग टू इमेंसली बेनिफिट यू वंस यू आर थ्रू दैट 2 to 3 month टाइम पीरियड. एट द एंड आपको लगेगा कि हाँ यार ये कीप इन टच की वजह से 2-3 सब्जेक्ट हमेशा दिमाग में एक एडवांटेज देते रहे, एक माइंड को एक सुकून मिलता रहा. राइट? लाइक DT, लाइक IDT में हो सकता है एग्जामिशन की लिस्ट, कुछ भी आप उठा सकते हो टोटली अपॉन यू अनप्लान्ड मैनर में. राइट? तो इसमें अब जैसे 1 घंटा आप उठा सकते हो, जैसे DT पहले आपने क्लासेस ले रखी है या एक बार कर रखी है, DT के कोई पॉइंट उठा लो, इलेक्टिव का कुछ करना है कर लो, IDT ले लो, SCMP ले लो, कुछ भी ले लो, ऑडिट ले लो, ऑडिट के जैसे ऐसे सिर्फ एक ऐसे डेली रीड कर लिया, इट कैन इमेंसली बेनिफिट. राइट? तो 1 घंटा और ये सब जो टाइम फ्रेम्स है ये बेसिक एक अप्रॉक्स है. जरूरत पड़े और मन कर रहा है तो बढ़ा देना, 2 घंटे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट? सो कीप इन टच स्ट्रेटेजी आपको मेंटेन करनी है. आगे भी हर जगह मैंने दी है, बट कहीं पे भी डिटेलिंग नहीं दूंगा कीप इन टच का. राइट? ओके, सो व्हाट आर द डिलीवरेबल्स एज ऑन 20th August? आपने ये 20 दिन के एंड में क्या अचीव किया? FR, लॉ एंड SFM शुड बी डन वंस. एक बार तो आपको FR, SFM और लॉ आपकी हो जानी चाहिए. सम अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केप्ट इन टच ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजी. तो 20 तारीख तक आपको ये 3 सब्जेक्ट्स हाथ में आ जाने चाहिए, बाकी सब्जेक्ट्स का एक एडवांटेज माइंड में मिल जाना चाहिए. नाउ 21st August से 31st August में आपको 10 दिन दे रहा हूं, 10 से 11 दिन में आपको मेन फोकस रखना है ऑडिट में. प्लीज पिक इट इन मॉर्निंग 4 hours. दोपहर में जनरली मैंने सुना है नींद आती है लोगों को, शाम में ऑलरेडी दिन का स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग खाली हो जाता है, तो ऑडिट इतनी हो नहीं पाती. सो माई एडवाइस वुड बी टू गो फॉर ऑडिट इन द मॉर्निंग डेली 4 hours. 10 से 11 दिन में सुबह 4 से 5 घंटे में ऑडिट खत्म हो सकती है. बैलेंस डे नीड्स टू बी गिवन फॉर FR, SFM, लॉ. जो भी आपको कोई आपका मेजर पॉइंट रहता है, तो दिस टोटली डिपेंड्स कि आपके ऊपर 3 सब्जेक्ट्स में ये कितना बचा है, तो वो 2-3 घंटे में खत्म कर देना. और बचा हुआ टाइम डेली शाम में आपको इलेक्टिव करना है. इलेक्टिव भी इतना भारी नहीं बनेगा सर को, और ये वाला भी इतना भारी नहीं है, तो मेन आपका फोकस इसमें ऑडिट में जाएगा. प्लस ऑब्वियसली कीप इन टच स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो आधा घंटा 1 घंटे. राइट? सो बेसिकली मैंने इस 10 डेज में क्या करा है, ऑडिट पे मेन फोकस रखा, और जो ग्रुप 1 के बाकी 3 सब्जेक्ट्स है उसमें से अगर कुछ रहता है उसको मैंने यहाँ पे खत्म करा. इफ एनीथिंग इज लेफ्ट उसको खत्म करो. और इलेक्टिव डेली 3 घंटे में एक बेस बन जाएगा. ओपन बुक एग्जाम है,
और इलेक्टिव आई कैन नॉट डिस्कस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेवल, so you can give daily 3 hours for that particular purpose as well, right? Now what are the deliverables as on 31st August? Our 1 month has expired. On 31st August your group 1 should be done because you are giving very sufficient time for all the 4 subjects. तो एक महीने में तो देखो ग्रुप 1 खत्म करना ही पड़ेगा, क्लियर है? एंड इलेक्टिव भी आपका डन है, या मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट डन है, हो सकता है इसमें थोड़ा आपका रहता हो. सो आई एम गिविंग यू 5 days ऑफ बफर. आई एम गिविंग यू 1st September to 5th September बफर. इस बफर में whatever left out of the deliverables of 31st August. Now the deliverable for 31st August was group 1 and elective. So if you feel कि group 1 में से कुछ पार्ट रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, if elective is not done properly, you can give these 5 days, दिन के 10-10 घंटे, मतलब ये 50 घंटे है आपके पास 31 अगस्त के डिलीवरेबल्स को कंप्लीट करने की, राइट? तो आई कैन से कि 5 सितंबर को तो 100% आपका ग्रुप 1 हो चुका है, इलेक्टिव भी हो चुका है. नाउ आउट ऑफ ग्रुप 2 सबसे हेवी वेट आता है डीटी. सो 6 सितंबर से 20 सितंबर, ये जो 15-16 दिन है, इसमें डीटी डेली 4 से 5 घंटे मिनिमम, हो सकता है आपको 6 घंटे भी करनी पड़ जाए. अच्छे से करनी है, अच्छे से, मतलब यू हैव टू गिव कंप्लीट कंसेप्चुअल फोकस ऑन डीटी. हेंस आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम. दिन का ऑलमोस्ट आधा टाइम मैं आपको दे रहा हूं फॉर डीटी एंड ऑल्सो कंप्लीट 15 डेज. अपार्ट फ्रॉम दैट एससीएमपी कोशिश करना डेली आपको 3 घंटे, 2 से 3 घंटे करनी है. एंड ये दोनों सब्जेक्ट्स हमारा मेन फोकस रहेंगे. मैं इसमें तीसरा सब्जेक्ट नहीं उठा रहा बिकॉज आई फील दीज 2 आर क्वाइट हेवी वेट इन इटसेल्फ, डीटी कंपैरेटिवली मोर. अपार्ट फ्रॉम दैट कीप इन टच स्ट्रेटेजी 2 आवर्स. इसमें आप ग्रुप 1 उठाओ, इलेक्टिव उठाओ, जो भी लग रहा है, बस रीड करना है. इसमें आपको कहीं पे भी प्रेशर नहीं आना चाहिए. इसमें आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए. दैट इज नॉट द एम. द ओनली एम इज रात को सोने से पहले बेड पे 2 घंटे रीड करना है. सिर्फ 2 घंटे कोशिश करना, बहुत आसान रहता है और बहुत फायदा मिलेगा आपको, राइट? सो आई कैन से दैट डिलीवरेबल ऑन 20th September, दैट इज एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड. डीटी शुड बी डन, एससीएमपी शुड बी डन. सर फिर भी लग रहा है डीटी शायद ना हो पाए, दे रहा हूं मैं आपको दोबारा 5 दिन का बफर दे रहा हूं. Whatever left out of the deliverables of 20th September, that is your DT and SCMP. कोशिश करना कि ये प्लान आपका अच्छे से कैरी फॉरवर्ड हो एंड यू आर एबल टू कंप्लाई विद इट. इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली. क्लियर? अगर आपने 20 सितंबर तक ये काम कर लिया है तो वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ चुके हो. बिलीव मी ऑन दिस पॉइंट, राइट? नाउ 26 से 10th अगेन जो आपको 15 डेज का टाइम मिलेगा 10 अक्टूबर तक, उसमें आपका मेन फोकस अब आईडीटी रहेगा. 4 से 5 घंटे डेली एंड कीप इन टच स्ट्रेटेजी मिनिमम 3 घंटे. सर लेकिन टोटल तो इसमें 8 ही घंटे बने. अक्टूबर के मंथ में हम सिर्फ 8 घंटे पढ़े? नहीं, ऑब्वियसली 10-12 घंटे उस टाइम आप पढ़ोगे, मुझे पता है पढ़ोगे, बट मैं इसमें इतनी डिटेलिंग नहीं दे रहा क्योंकि हो सकता है आपका डीटी रहता हो, फिर आप डीटी 1-2 घंटे उठा लो, तो वो थोड़ा अनप्लान जाएगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अक्टूबर की प्लानिंग ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते. डोंट गो इनटू द डिटेलिंग एंड निट्स एंड ग्रिट्स ऑफ दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स. ठीक है, अक्टूबर में थोड़ा अनप्लान जाएगा. ठीक है, तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि 10 अक्टूबर के आसपास मेरे सारे 8 सब्जेक्ट्स आर डन. आईडीटी भी मैंने यहाँ पे खत्म किया, बाकी ऊपर खत्म हो चुके हैं. क्लियर? नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, अब 11 to 14 अक्टूबर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो. सुबह और शाम में, ये सुबह एक सब्जेक्ट और शाम में एक सब्जेक्ट, उसका क्या करना है, आरटीपी और एक पेपर टाइम बेस्ड, बस. सर इसकी अलग से रिवीजन नहीं, जो हो गया सो हो गया. अब आपको अपने आप को, यू हैव टू थ्रो योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर टाइम जोन कि 3 घंटे में मैं क्या अटेम्प्ट कर पा रहा हूं. रियलिटी चेक मिल जाएगा कि क्या करना है. सो 4 days combination of RTP plus MTP which you have to properly attempt in 3 hours time frame. घर पे बैठ के प्रॉपरली 3 घंटे बंद करके घर वालों को बोल के अलार्म लगा के 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है और अपने आप की स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी है. तो सुबह के टाइम में आपको 1 सब्जेक्ट, शाम के टाइम में 8 सब्जेक्ट. 8 सब्जेक्ट है, दिन में 2 कवर होंगे तो 4 दिन लगेंगे. हेंस आई एम गिविंग यू 4 days, राइट? सो 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 2 into 4 is equal to 8 सब्जेक्ट. 4 days आपको मिल रहे हैं. At the end of this period, that is on 14th October, you will have a reality check कि आपकी प्रिपरेशन क्या है. उसके हिसाब से फिर 15 से 24 अक्टूबर अनप्लान्ड, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. सर ये कैसे पता चलेगा व्हाट इज रिक्वायर्ड? आपको खुद ही पता चल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट. क्लियर है बात? और फिर 25 से आगे आप FR SFM की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे. वो सारे यही करते हैं, लास्ट 6 दिन पहले 2 पेपर पे लगाते हैं. ध्यान रखना, अब this is the last time, this is the last point of time where you have an option, that is from my side मैं आपको बता रहा हूं, not legally.
you have an option of deciding whether you want to go for both groups or not. ऐसे मत करना कि मैं अगस्त बोथ ग्रुप्स पढ़ रहा हूं, फिर सितंबर में डर लगता है और अक्टूबर में ड्रॉप करता हूं। नहीं, फीलिंग जो है ना, वो डर वो तो मेंटेन रहेगा उसमें। प्लीज ये मत सोचना कि सर मुझे डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो थोड़ी फीलिंग आएगी, उसके वजह से ग्रुप ड्रॉप नहीं करने। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि सर 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस रहती है, सेल्फ स्टडी अभी तक एक बार भी हुई नहीं है, देन माय एडवाइस वुड बी नॉट टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ब्लंटली, बिकॉज दैट मे लीड टू सम प्रॉब्लम्स, राइट। सारे बच्चों के लिए नहीं, कुछ बच्चे कर भी लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉब्लम करेगा। इससे अच्छा आप कंप्लीट 3 महीने आप एक ग्रुप पे दो, लेकिन क्लासेस हो गई एक बार, या एक हाथ जो है 1-2 पेंडिंग है, साथ में पढ़ाई करी है, लग रहा है 3 महीने निकाल लूंगा, तो फिर डर को इग्नोर करो एंड काइंडली गो फॉर बोथ ग्रुप। बट अब जो डिसीजन लोगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले 3 महीने। क्लियर है बात? दिस वॉज ऑल फॉर बोथ ग्रुप्स। इसके सिवा आपके कोई स्पेसिफिक डिटेल्स या इफ देर आर एनी स्पेसिफिक क्वेरीज, यू कैन कमेंट अपॉन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोस इन द बेस्ट मैनर आई कैन। क्लियर? अब सिंगल ग्रुप वालों के लिए बहुत ही जनरल गाइडलाइंस आएंगी, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में ऐसा नहीं लगता कि सर पता नहीं कैसे हैंडल करें। 4 ही सब्जेक्ट है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको अपना एक स्टडी प्लान बना के रखना है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। FR, SFM, ऑडिट एंड लॉ। ठीक है, ग्रुप 1 की पहले बात करते हैं। सो देखो, ऑल द 4 सब्जेक्ट शुड बी कंप्लीटेड प्रॉपरली टिल 30th सितंबर। आपको दिमाग में रखना है मेरे पास 3 महीने नहीं, मेरे पास 2 महीने, अगस्त और सितंबर। क्लियर? अक्टूबर में आपको रिविजन्स लगानी है, जो कि रहेंगी 2, मिनिमम 2 रिविजन्स प्लस पेपर्स प्लस RTP। आपको ब्रॉड गाइडलाइंस बता रहा हूं, प्लीज आप डेट वाइज प्लान मत बनाना कि मेरे को 20 अक्टूबर तक इतना ये करना। मैं पहले बताता था, मैं डेज वाइज बताता था सिंगल ग्रुप वालों के लिए, बट स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेल मी सर 4 सब्जेक्ट में डेट वाइज नहीं काम कर रहा है, बाद में आके चेंजेस हो ही जाते हैं, तो हमें आप ब्रॉड गाइडलाइंस दो। दैट इज द सोल रीजन आई एम गिविंग यू ब्रॉड गाइडलाइंस। सो 2 रिविजन्स आपको अक्टूबर में प्लान करनी है, पेपर्स मिनिमम आपको 2 से 3 पेपर सॉल्व करने हैं, RTP MTP ये सारा उसी में होएगा। ठीक है, तो पढ़ाई का टाइम सिर्फ 2 महीने। FR एंड SFM डेली 3 से 4 घंटे करना है अगस्त सितंबर में। भूल के भी ये गलती मत करना कि FR SFM ड्रॉप करो। सर इतना फोकस क्यों दे रहे हो इन 2 सब्जेक्ट्स में? देयर आर 2 प्राइमरी रीजंस। पहले दोनों पेपर है, पहले दोनों पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, पूरा टोन सेट हो जाएगा, थ्योरी अच्छे से हैंडल हो जाएगी ऑडिट और लॉ की। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों बहुत स्कोरिंग है। FR में मेरे 70 प्लस थे, SFM में मेरे 90 थे। बोस्ट नहीं कर रहा, बता रहा हूं, यही स्ट्रेटेजी लगाई थी कि FR SFM में रोज करता था, चाहे एक सवाल करूं, बिकॉज आई हैड टू हैंडल 8 सब्जेक्ट्स, तो मैं रोज बेशक एक सवाल करूं, पर भैया मैं डेली करता था। तो FR और SFM डेली करना और पूरे 2 महीने करना, दोनों में आपके 70-80 पार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर दोपहर का टाइम मिलता है, सुबह 3 घंटे FR, शाम में 3 घंटे SFM, दोपहर का टाइम में आपको थ्योरी करनी है। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द डे आपको थ्योरी करनी है। पहले लॉ उठाना, फिर ऑडिट उठाना, एक महीना उठा लेना, एक महीना उठा लेना। मतलब अगस्त में लॉ, सितंबर में ऑडिट। एक चीज का ध्यान रखना, जब लॉ को रिप्लेस करोगे ऑडिट से, कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगाना लॉ के लिए। तो कैसे लगाए? लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, आधा घंटा देके रीड करना है, ताकि लॉ भी टच में रहे। 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, 3 ही पढ़ने हैं, बट लॉ को कीप इन टच रखना है। आप MCQ सॉल्व कर सकते हो किसी चैनल के, आप कुछ ना कुछ एक जस्ट ट्राई टू स्टे इन टच। अदरवाइज साइकोलॉजिकली इट मे प्रूव टू बी, इट मे एडवर्सली अफेक्टिव एट आई एम फॉरगेटिंग लॉ, वो नहीं करना। ओके, अक्टूबर में मिनिमम 2 टाइम बेस्ड पेपर देने हैं, एंड अक्टूबर की जो प्लानिंग है अभी नहीं करनी, कुछ भी प्लान अभी मत करना। सर रिविजन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टोटली विल डिपेंड आपके 2 महीने कैसे जाते हैं। तो वो चीज़ एक मेरे ट्रस्ट पे आप मान लो, अक्टूबर की प्लानिंग अभी इस डेट तक ये करना है, उस डेट तक वो करना है, मत करो। क्लियर? बेसिक ध्यान रखना कि रिवीजन जो होगी उसमें आपकी मार्किंग्स रेडी रहनी चाहिए। मार्किंग्स करते रहना कि मतलब ये चैप्टर है तो पूरा पूरा चैप्टर में बार बार रिवाइज नहीं कर सकता, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, उसके लिए मार्किंग्स होना जरूरी है। 10 सेक्शन है तो 2 सेक्शन में कहाँ मुझे दिक्कत आ रही है मुझे पता होना चाहिए। 10 सवाल है तो 10 सवालों में से 3 सवालों में मेरे को दिक्कत आती है, और वो भी क्या दिक्कत आ रही है। दिस इज नोन एज मार्किंग्स अप्रोच। यू शुड हैव योर मार्किंग्स रेडी, अदरवाइज रिवीजन में दिक्कत आएगी। अभी भी टाइम नहीं गया है, 2-3 महीने हैं, आराम से मार्किंग्स पे ध्यान दो, पर्सनलाइज मैनर में मार्किंग्स बनाओ। क्लियर? तो ये फोकस जो है मार्किंग्स अप्रोच पे रख लेना। ओके, तो ये एक मोटा मोटा आइडिया था फॉर ग्रुप 1। इससे ज्यादा आपको कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, डिटेलिंग में मत जाना। अभी 2 महीने जो बोल रहा हूं, FR SFM डेली, फर्स्ट मंथ में अगस्त में आपको लॉ उठानी है दोपहर में, उसके बाद सितंबर में ऑडिट। जब ऑडिट उठाओगे आधा घंटा डेली लॉ रीड करते रहना। अगस्त सितंबर में चारों सब्जेक्ट खत्म,
अक्टूबर में 2 रिविजन्स, 2 पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी। सर रिवीजन कैसे करनी है? कम टाइम देने हैं, जैसे कोशिश करना 4-5 दिन में 3 दिन में एक सब्जेक्ट उठा पाओ। कैसे रिवीजन करेंगे? मार्किंग्स बेस्ड अप्रोच। और डिटेलिंग नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। सितंबर के एंड में बेशक एक गाइडेंस वीडियो और बना दूंगा कि आपको कैसे प्लान करना है लास्ट मंथ। क्लियर? नाउ कमिंग टू ग्रुप 2 एससीएमपी इलेक्टिव, डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, इलेक्टिव के अलग अलग सब्जेक्ट्स है, डीटी एंड आईडीटी। अक्टूबर मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स करनी है, जो कि आप अभी प्लान नहीं करोगे। मेजर स्टडी नीड्स टू बी डन, ऑल द सब्जेक्ट्स नीड टू बी प्रॉपरली फिनिश्ड इन अगस्त एंड सितंबर। तो 2 महीने आपके पास। सर नवंबर के स्टार्ट का क्या करेंगे? व्हाट अबाउट द इनिशियल डेज व्हेन ग्रुप 1 विल कमेंस? वो आपको भी गिनना नहीं है, राइट? ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको इन चारों में से जो डीटी है भैया, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ाया है, डीटी सबसे ज्यादा आपको तंग करेगा। क्लियर? तो उसको स्टार्टिंग से आपको डेली एवरी डे मिनिमम 3 से 4 घंटे देने हैं, मिनिमम 3 से 4 घंटे, 60 दिन 4 घंटे, 240 घंटे आपको डीटी में मिनिमम देने हैं। करते रहना है, कंसेप्चुअल रिवीजन करते रहनी है और रिटर्न प्रैक्टिस करते रहना भाई, रिटर्न प्रैक्टिस करते रहना, ये सब सब्जेक्ट्स पे बताना, राइट? अच्छा, दिन में 3 सब्जेक्ट उठाने हैं और चौथा कीप इन टच की कोशिश कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी उठा सकते हो, डीटी तो सुबह करनी है, उसके साथ अगर आप आईडीटी और इलेक्टिव उठा रहे हो, एससीएमपी का थोड़ा सा कीप इन टच, मतलब कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहोगे, आधा घंटा सोने से पहले फायदा मिलेगा। दिन में 3 सब्जेक्ट उठाने हैं, जिसमें से डीटी आपका फिक्स रहेगा। क्लियर? और फिर आईडीटी इलेक्टिव, या इलेक्टिव पहले खत्म करने के बाद आईडीटी एससीएमपी ऐसे उठा लेना, क्योंकि 4 में ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर कौन सा कब उठाऊं, सारी सब्जेक्ट हो जाएंगे हैंडल। पर डीटी डेली करना है, डीटी डेली करना है। नेक्स्ट बात, नवंबर के इनिशियल डेज आपको अभी नहीं गिनने, वो बोनस रहेंगे, उसमें जो बचा होगा, जो लगेगा क्लियर, एक यू हैव टू रिवाइज दैट यू कैन डू, डोंट काउंट इट इन करंट प्लानिंग। इनफैक्ट अक्टूबर को भी अभी काउंट मत करो, अगस्त सितंबर में प्रिपरेशन करनी है, एंड मिनिमम 2 to 3 टाइम बेस्ड पेपर्स आपको करने हैं। तो इफ आई ट्राई टू समराइज दिस डिस्कशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीटी एवरी डे, डीटी एवरी डे, 2 और 3 सब्जेक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस। डीटी के साथ कईयों का होता है कि सर नहीं, डीटी और इलेक्टिव पहले खत्म कर देंगे, फिर एससीएमपी उठाएंगे, फिर आईडीटी उठाएंगे, कोई बात नहीं, फिर 2 सब्जेक्ट कर लो, पर डीटी आपको डेली करना है। क्लियर? अक्टूबर मंथ को भी प्लानिंग में मत लेना, अक्टूबर मंथ में आपकी रिविजन्स रहेंगी एंड पेपर्स रहेंगे। नवंबर के जो स्टार्ट के दिन है उसको भी अभी मत गिनना, वो बोनस रहेंगे। बस एक चीज बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, डीटी डेली करना है, डीटी डेली करना, और सारी चीजें लिख लिख के करो, जितना लिख लिख के करोगे उतना फायदा मिलेगा। बाकी एक चीज, मार्किंग्स अप्रोच पे ध्यान देना, एवरीथिंग नीड्स टू बी डन एज पर मार्किंग्स अप्रोच। आज अगर मैं 10 चीजें कर रहा हूं, मेरी मार्किंग्स रेडी होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट मुश्किल है, मेरे लिए क्या मुश्किल है, मुझे क्या रिवाइज करना है। बाद में रिवीजन के टाइम ध्यान नहीं आएगा, पागल हो जाओगे इतना सारा सिलेबस देख के। क्लियर? तो क्वेश्चंस में भी मार्किंग्स अप्रोच लगानी है कि 10 सवाल है तो मुझे कौन से मुश्किल लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं मतलब क्यों मुश्किल लग रहे हैं, उसमें क्या पार्ट मुझे मुश्किल लगा, ताकि उतना ही पार्ट आप इफेक्टिवली रिवीजन में उठा पाओ, राइट? ये बहुत ही बेसिक प्लानिंग गाइडलाइंस थी फॉर सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप्स की, तो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर आर एनी स्पेसिफिक क्वेरीज यू कैन ट्राई टू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोस एज सून एज पॉसिबल, एंड ट्राई करूंगा वो सारी रिजॉल्व हो पाए, राइट? तो ये थी हमारी डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्री एमसीक्यूज है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, फालतू के एमसीक्यूज वहाँ पे नहीं पूछे जाते, एंड क्लासेस एंड बुक्स सारी हमारे वेबसाइट पे है www.swalimbeclasses.com। 80 आवर्स का बैच भी अभी अवेलेबल है विथ हार्ड कॉपी बुक्स। उसके सिवाय कोई भी इशू है आपको, 9560436910, इस पे प्लीज व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करना, डायरेक्ट कॉल मत करना, उठाना मुश्किल हो रहा है, डायरेक्टली मैसेज करना, कुछ टाइम डिसाइड करके आई कैन हैव अ कॉल विथ यू एज वेल, राइट? तो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, और टेंशन मत लेना, अभी बहुत चीजें अनसर्टन लगेंगी, आराम आराम से, टेक 1 वीक एट ए टाइम। मोटा मोटा प्लानिंग ठीक है, बट अभी ये सोचो अगले हफ्ते क्या करना है, करते जाओ, आराम आराम से होएगा, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है, यू विल क्लियर, यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।